رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن 2021 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس سیشن سے مفید ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ اس محفل کو آغاز ہم تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، جو میں سسٹر عافیہ کو دعوت دیتی ہوں۔ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہیں، کنٹینیو کریے۔ میں سورہ انعام کی آیت نمبر 14 to 16 کی تلاوت کروں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصل والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ ترجمہ: تو کیا میں اللہ کے سوائے کسی دوسرے شاسک کی کھوج کروں، جبکہ اسی نے تمہاری طرف ایک مفصل کتاب اتارا ہے، اور ہم نے جن کو کتاب دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں وہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ ہے، اس لیے آپ شک کرنے والا نہ بنے، اور تمہارے رب کے کلام سچے قول اور انصاف میں پورا ہو گئے، اس کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہ اچھی طرح سننے والا جاننے والا ہے۔ اور یدی آپ دھرتی واسیوں میں زیادہ تر کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، وہ صرف بے بنیاد خیال کی پیروی کرتے اور اندازہ لگاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب میں بلانا چاہوں گی ٹیچر روزی کو، وہ آئیں اور سورہ انعام کو کنٹینیو کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ انعام تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ ہم کیا دیکھا، یہ سورہ میں اللہ نے توحید کے طرف بلا رہے ہیں، توحید کا کھول کھول کے مثال دے دے کر توحید کو پروف کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کھول رہے ہیں، اور انکار کرنے والوں نے کس طرح انکار کیا، وہ کتنا بے وجہ اور بے بنیاد اور اس کا طریقہ بھی کیا تھا، وہ بھی ہمارے سامنے کھولا ہے۔ اور اس کا بلاوا میں وہ لوگ جس طرح انکار خود کرتے ہیں دوسروں کو بھی بلاتے ہیں اس طرف نہ جائیں۔ تو ہم لوگ یہ سارے یہ مکی سورہ میں ہم دیکھتے ہیں توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں جو سچائی ہے وہ اللہ ہمیں بیان کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم آیت کے طرف۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب اتار دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری ہے، اسی لیے تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تو یہاں کہنے والا کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
और किन लोगों को कह रहे हैं? ईमान वालों को, कि अल्लाह ने पूरी तफसील के साथ किताब नाजिल की, कुरान। दूसरा सूरा में भी अल्लाह ने फरमाया, सूरा नहल में, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानल, खुली बयान और तमाम चीजें हकीकत के साथ, दलील के साथ बता दिया गया। तो ये हकीकत जानने के बाद फिर क्या हम दूसरे हकीम के पास हकीकत का तलाश करूं? और जो अहले किताब, पहले दिनों को किताब दी गई है, उन लोगों को भी मालूम है कि ये किताब हक के साथ, यानी कुरान हक के साथ नाजिल हुआ है, इसीलिए तुम शक करने वालों में शामिल ना हो। तो यहाँ हमें भी मुहस्बा करने का है कि इस बारे में हम कोई शक में तो नहीं हो, क्योंकि कुरान के बारे में हम लोग जब पढ़े, जो सबसे पहले कुरान पर ईमान लाए, कोई शक नहीं, इसका एक एक बात सच्चाई है, सच है। फिर कुरान पढ़े, फिर समझे, अमल करे, दूसरे तक पहुंचाए। तो सबसे पहले इस पर ईमान लाए, कोई शक नहीं। ऐसा ना समझे कि ये कितना पुराना है, कब का है, तब का रूल्स रेगुलेशन आज नहीं चलेगा। इसी तरह कुरान के बारे में कोई शक में ना पड़े। जो आसमान कब बनाया गया, कितने पहले, हम कोई नहीं जानता आसमान अल्लाह ने कितने पहले बनाया है। तो क्या पुराना हो गया आज के लिए? वो क्या ठीक नहीं है? क्या मॉडिफिकेशन का जरूरत हो गया है? क्या कुछ रिपेयर का जरूरत हो गया है? ऐसा तो नहीं। तो कुरान में जो हकीकत, जो हक अल्लाह ने बयान की है, और वो क़यामत तक चलने वाला है, तो इसमें कोई शक में ना पड़े और दूसरों को भी शक में ना डाले। नेक्स्ट आयत नंबर 115। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के पहलू से मुकम्मल है, कोई उसके फरमानों को बदलने वाला नहीं है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। हम सूरह माइदा में पढ़ चुके हैं ना, आज के दिन मुकम्मल कर दिया, दिन मुकम्मल हो गया है। अल्लाह के फरमानों, अल्लाह के इंसाफ के पहलू भी मुकम्मल हो चुके हैं। आयत नंबर 116। और ए नबी, अगर तुम उनके ज्यादातर लोगों के कहने पर चलो जो जमीन में बसते हैं, तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो सिर्फ गुमान पर चलते और अटकल दौड़ाते हैं। तो यहाँ भी हमें थोड़ा देखने का है, ज्यादातर लोगों के कहने पर चलो, है? तो हमारा हाल क्या है? क्या हम भी ज्यादातर लोगों के तरफ ही जाते हैं? कोई स्पीच हो रहे हैं, कुछ एक जमात है, बहुत ज्यादा भीड़ है, हम भी वहां पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहे, लेकिन बाप रे भीड़ क्या था, बहुत ज्यादा लोग थे, हम भी वहां जम गए। अरे हम हज उम्रा में गए, देखा बहुत सारे लोग काबा के साथ सेल्फी ले रहे हैं, हम भी ले ली। क्या हमारा हाल ये है? जहां ज्यादा है हम भी उसी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन कोई चीजों का ज्यादा होना वो हक का सबूत नहीं है कि ज्यादा है तो वही हक है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो सच है, जो हक है, वो कम ही होता है, थोड़ा ही होता है। जो फेक स्टोन बहुत है, लेकिन डायमंड थोड़ा सा होता है। तो इसीलिए जो हक का तलबगार होता है, उसे देखना चाहिए कि क्वांटिटी नहीं, बल्कि वो हक है या अल्लाह के अहकाम के मुताबिक है, कुरान हदीस में साबित है क्या, यह देखने का है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपने फरमाया था माफूम कि उनका जो उम्मत मोहम्मदी 73 ग्रुप में बांट जाएंगे, सिर्फ एक ही ग्रुप जन्नत में दाखिल होंगे। तो 73 में एक ग्रुप है, तो वो कितना थोड़ा है। तो इसीलिए हमें देखना है ज्यादा कहाँ वो नहीं, बल्कि हक क्या है, हक के रास्ते पर कौन चल रहे हैं, वो हमें देखना है। और कभी कभार हो सकते हैं कि हक के रास्ते में चलने के लिए हम अकेले ही रह गए, तो वो भी सही है। ऐसा ना सोचे कि अरे हम तो ऑड वन आउट हो गया है। अगर वो हक है तो चाहे तो उसी रास्ते पर अकेले ही चले, जो ज्यादा है उसी के तरफ ये देने का इतना ज्यादा होना हक होने का सबूत नहीं है। इससे हमें ये लेसन लेने का है। नेक्स्ट आयत, हकीकत में तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है
कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधे रास्ते पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल मजबूरी की हालत के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें बता चुके हैं। ज्यादातर लोगों का हाल ये है कि इल्म के बगैर सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर गुमराह कर देने वाली बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। यहाँ हमें जो अल्लाह के नाम लिया हुआ है, हम सूरह बकरा में क्या देखा, माइदा में भी देखा, 4 चीज अल्लाह ने हराम किया। क्या है सूरह बकरा में? मुर्दा, खून, सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह का के अलावा और किसी का नाम लिया गया, अल्लाह का नहीं बल्कि और किसी का नाम लिया गया, ये 4 चीज अल्लाह ने मना किया। तो जो जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया उसका गोश्त क्यों नहीं खाओगे? ये तो हलाल है ना। और तफसील के साथ कौन कौन चीज हराम है सूरह माइदा में भी हम लोग देख ली ना, कौन कौन चीज हराम है वो तो अल्लाह ने बयान कर दिए हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बगैर इल्म नहीं है, अपना ख्वाहिशों की बुनियाद पर लोगों को गुमराह कर देने वाली बातें बता देते हैं। तो यहाँ हमें भी खुद को चेक करना है। कोई चीज हमें पसंद नहीं, हमें आइसक्रीम पसंद नहीं या शूट नहीं होता, हमारा थ्रोट प्रॉब्लम हो जाते हैं, हम लोग कह देते हैं ना आइसक्रीम क्या क्या चीज से बने हैं, उसमें ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, वो चीज नहीं खाना चाहिए, अरे वो तो कुछ हराम चीज भी मिला हुआ है। इसी तरह अपना प्रॉब्लम है या अपना पसंद नहीं है तो हम किस बात कहकर लोग को भी गुमराह कर देते हैं बगैर इल्म। जो चीज हमें अपना ख्वाहिशों के मुताबिक, तो हमें हर चीजें को इल्म हासिल करना चाहिए और अपना ख्वाहिशात की बुनियाद पर दूसरों को गुमराह नहीं करना चाहिए। ऐसे हमें सबक लेने का है। तुम खुले गुनाहों से भी बाँचो और छिपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह की कमाई करते हैं वो अपनी उस कमाई का बदला पाकर रहेंगे ना। खुले गुनाह यानी शिर्क, रियाकारी, नमाज को नहीं पढ़ना, शराब पीना, बेहया काम करना, ये सारे खुला है ना। और छुपे गुनाह क्या है कि छुप के जो गलत मिलना, गलत जो जायज नहीं है मुलाकात, छुप के मिलना, बदगुमानी, दिल के अंदर बदगुमानी, बुरा सोच ना, ये सारे छुपे हुए गुनाह है। गुनाह क्या है? आखिर गुनाह क्या है? जो काम है जो दिल में तीर के तरह खटके, जो दूसरा कोई जान ले तो हमें बुरा लगे, वही गुनाह है। वही गुनाह छुपा के रखते हैं। और कोई भी बुरा काम करे, गुनाह करे तो हमारा दिल वो जान लेते हैं, दिल में वो खटकते हैं, हमें मालूम हो जाता है ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज कोई ना जाने तो ही बेहतर है। तो इसी तरह हमें खुद पहचानना होगा कौन सा चीज बुरा है, गुनाह है। नेक्स्ट आयत कि और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर जुबाह ना किया गया हो उसका गोश्त ना खाओ, ऐसा करना फिस्क है। शैतान अपने साथियों के दिलों में शक और इतराज डालते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करे, लेकिन अगर तुमने बात मान ली तो यकीनन तुम मुशरिक हो। क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था, इसका माने क्या है कि जहालत बेशूरी की हालत में थे, जहालत में थे, कोई इल्म नहीं था। तो जो शख्स पहले मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदगी बख्शी यानी इल्म समझ बूझ अता की और उसको वो रोशनी अता की। कौन सा रोशनी? कुरान, हिदायत। वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान जिंदगी का रास्ता तय करता है। उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हुआ हो और किसी तरह उनसे ना निकलता हो। हक का इनकार करने वालों के लिए तो इसी तरह उनके अमल खुशनुमा बना दिया है। यहाँ भी हमें बहुत देखना है कि अमल खुशनुमा ये कैसा होता है कि अंधेरे में गलती में होने के बावजूद समझते हैं कि हम ठीक हो। हमें खुद को भी चेक करना है क्या हम जो अमल करते हैं उसी में हम खुश हैं। हमें लगता है कि जो हमारा अमल वो ठीक है, हमारा ड्रेस,
हम जिस तरह लिबास पहनते हैं, जिस तरह डेली शादी ब्याह कराते हैं, जिस तरह बच्चे पैदा होने से जो काम काज करते हैं, हमारा जो अमल है वो हमें लगता है हम जितना हम कर रहे हैं वो सही है, दूसरा जो कर रहे हैं उसमें गलती है, उसमें नाजायज है, लेकिन हम जितना कर रहे हैं उस हद तक वो जायज है। इसी तरह हम अपना अमल को खुशनुमा दिखते हैं, हमें लगता है हम सही राह पर हूँ, तो यहाँ हमें चेक करना है कि हम अपना अमल को अच्छा दिख रहे हैं या हमारा अमल कुरान और हदीस के मुताबिक है। आयत नंबर 123, और इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिमों को लगा दिया है कि वहाँ अपने धोखे और फरेब का जाल फैलाए। असल में वो अपने फरेब के जाल में आप फंसते हैं, मगर उन्हें इसकी समझ नहीं है। जब इनके सामने कोई आयत आती है तो कहते हैं हम ना मानेंगे जब तक कि वो चीज खुद हमको ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लोगों का, कुरैशी मक्का का भी इसी तरह ही हाल था कि फरिश्ता क्यों हमारे साथ बात नहीं करते, क्यों हमें निशानी नहीं दिया जाता, इसी तरह बात वो लोग क्या करते थे। सूरह मुद्दस्सिर में भी इसी तरह आयत है कि वो लोग उनमें हर इंसान चाहता है कि उसे वाजे किताब दी जाए, हर एक को एक एक किताब दिया जाए, हम तब तक नहीं मानेंगे। तो हम तो उन लोगों का बात नहीं करेंगे, हमें अपना बात करना है। क्या हमारा हाल क्या है? क्या हम भी यही चाहते हैं कि जब तक कोई आयत हमारे सामने ना आए तो हम ईमान नहीं लाएंगे? ऐसा हमारा हाल तो नहीं है कि हम दुआ मांगते हैं, हमारा दुआ कबूल हो जाए तो हम मानेंगे, हम ईमान लाएंगे, हम कहेंगे हाँ हमने दुआ मांगे थे, दुआ कबूल हो गया तो ये सच है। ऐसा हाल तो हमारा नहीं है कि कब से दुआ मांग रहे हैं, मांगते मांगते हम छोड़ दिया, ऐसा हाल नहीं होना चाहिए। आयत जब निशानी मिले, जब हमें दिखे, हमें डायरेक्ट दिया जाए तभी हम ईमान लाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ईमान तो होता है बिन देखे गायब पर ईमान। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि अपनी पैगंबरी का काम किससे ले और किस तरह ले। करीब है वो वक्त जब ये मुजरिम अपनी मक्कारियों के बदले में अल्लाह के यहाँ रुस्वा और सख्त अजाब से दो चार होंगे। पैगंबर किसे बनाने का है, ये जिम्मेदारी कौन निभा सकता है? ये अल्लाह जानता है। ये अल्लाह जानता है कि ये जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम ये निभा सकते हैं, या कुरैश का बड़े बड़े सरदार जो दौलतमंद आमिर वो निभा सकते हैं। अल्लाह ने उस मुताबिक, अल्लाह जानता है ये जिम्मेदारी किससे देना है और कौन इसे निभा सकता है। इसीलिए हमें भी जो चीज नहीं मिला है ना, उस पर हम दुख ना करें। कौन सा नियमत को हम खुद एंजॉय कर सकते, प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, वो अल्लाह जानता है। उस मुताबिक, हमारा सलाहियत के मुताबिक हम जो चीज कैरी कर पाएंगे उस मुताबिक ही अल्लाह हमें देते हैं। तो हमें इसीलिए हर चीजें का जानकारी इल्म अल्लाह का है। किसे कौन सा चीज देना है, किसे पैगंबर बनाने का है, वो इल्म अल्लाह का है। नेक्स्ट आयत। तो ये हकीकत है कि जिसे अल्लाह हिदायत बख्शने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। सीना इस्लाम के लिए खोल देना ये क्या है कि इस्लाम की सच्चाई पर पूरी तरह मुतमईन कर देना, शक दूर कर देना। हर चीज में अल्लाह का कुदरत दिखते है, जहां भी अल्लाह का कुदरत दिखता है वो दिल एक्सेप्ट कर लेता है, सीना खोल देता है। और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है उसके सीने को तंग कर देता है, और ऐसा भींचना है कि उसे यूं मालूम होने लगता है कि मानो उसकी रूह आसमान की तरफ परवाज कर रही है। इस तरह अल्लाह हक के फराड और नफरत की नापाकी उन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते हैं। तो सीना को तंग कर देना क्या होता है? खोल देना तो इस्लाम के सच्चाई पर पूरी तरह मुतमईन कर देना, लेकिन सीना तंग होना ये क्या है कि दिल का घुटन, अल्लाह की बातें को अच्छा नहीं लगती, घबराहट होती है सुनने में, कुरान की मजलिस में दिल में सुकून नहीं होता,
तो यहाँ भी हम खुद को जांच करें, हमारा हाल ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करें, तो अल्लाह का खौफ लाए दिल में, खूब जिक्र करते रहे, तो इंशाल्लाह दिल में नरमी पैदा होगा, कुरान अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 126। हालांकि ये रास्ता तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है और उसके निशान उन लोगों के लिए वाज़ेह कर दिए गए हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। उनके लिए उनके रब के पास सलामती का घर है। सलामती का घर वो क्या है, वह है जन्नत। सलामती का घर यानी जन्नत, जहाँ सलामती ही सलामती। फरिश्ता जन्नत में वेलकम भी करते हैं ना, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उक़बद्दार। फरिश्ता भी सलाम के साथ ही वहाँ वेलकम करते हैं। फिर जन्नत में सलाम सलाम यही आवाज भी है, और वहाँ हर तरह का सलामती यानी हिफाजत है। तो सलामती का घर यानी जन्नत, उनके लिए उनके रब के पास सलामती का घर है, और वो उनका सरपरस्त है, और सही रवैये की वजह से जो उन्होंने इख्तियार किया। जिस रोज अल्लाह उन सब लोगों को घेर कर जमा करेगा, कब, क़यामत के दिन, उस रोज वो जिन्नों से खिताब करके फरमाएगा कि ये जिन्नों के गिरोह, तुमने तो इंसानी बिरादरी पर खूब हक साफ किया। इंसानों में से जो उनके साथी थे वो कहेंगे कि परवरदिगार, हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है, और अब हम उस वक्त पर आ पहुंचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। ये क़यामत के दिन जो जिन शैतान और जो गलत काम में एक दूसरे का साथ दिया करते थे, खूब इस्तेमाल किया, उसका मतलब यही है कि गलत कामों में एक दूसरे को मदद किया। हमें मदद किस काम में करना चाहिए, जो पिछले सूरा माइदा में हम पढ़ के आए हैं कि व तआनु अलल बिर्रि व तक़वा, बिर नेकी और तकवा परहेजगारी, इसी में एक दूसरे को मदद करो। हाँ, गलत काम में नहीं। गलत काम में देखो इन लोगों ने एक दूसरे का साथी बना था, तो क़यामत के रोज किस तरह उन्हें पूछा जाएगा। अल्लाह कहेगा, अच्छा अब आग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें तुम हमेशा रहोगे। उससे बचेंगे सिर्फ वही लोग जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। बेशक तुम्हारा रब सूझबूझ वाला और जानने वाला है। तो जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभार कुछ गलत काम हो जाता है या कर बैठता है, लेकिन उसका जिम्मेदार खुद नहीं है, जानबूझकर नहीं किया या मजबूर होके किया है। मजबूर होके किया है तो ऐसा शख्स को अल्लाह ने माफ कर देते हैं, अल्लाह बचा लेते हैं। जो कि अपना खुशी हो या जानबूझकर वो गुनाह या गलत काम नहीं किया, तो अल्लाह ऐसा शख्स को बचा लेते हैं। अल्लाह बचाना चाहेगा, मतलब ये हुआ। देखो, इस तरह हम आखिरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे, उस कमाई की वजह से जो वो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। दुनिया में भी गलत काम में एक दूसरे का साथी थे, तो आखिरत में भी, अजाब में भी एक साथ साथी बनकर अजाब भुगतते। इस मौके पर अल्लाह उनसे ये भी पूछेगा कि ये जिन्नों और इंसानों की गिरोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम ही में से वो पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयतें सुनाते और इस दिन के अंजाम से डराते थे? वो कहेंगे, हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की जिंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो इनकारी थे। हम हर रोज रात में हम लोग सूरह मुल्क पढ़ते हैं, वहां भी सेम आयत है कि क्या तुम दोज़ख का दारोगा पूछेगा, क्या तुम्हारे पास खबरदार करने वाला नहीं आया था? तो खुद कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या आया था लेकिन हमने कज़्ज़बना, हमने झुठला दिया। क्योंकि आखिरत का दुनिया अलग है, वहाँ कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, जो सच है वही मुंह से निकाल आएगा। तो आज ये दुनिया का जिंदगी धोखे में डाल रखा है। धोखे में क्या धोखा? लगता है कि ये दुनिया का जिंदगी हमेशा रहने वाली, यहाँ हमेशा ही रहेंगे, यहाँ का जो खुशहाली ये हमेशा रहेंगे। तो ये एक धोखा, ये दुनियादारी का जिंदगी धोखा में डाल रखा है। तो उस वक्त यानी आखिरत में खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे। ये भी बहुत ही डराने वाला बात है, खुद अपने खिलाफ। तो हमें भी यहाँ से सबक लेना है,
खुद को चेक करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि हमें भी आप खुद अपने खिलाफ गवाही देना पड़ेगा। इसी तरह अमल तो हमसे नहीं हो रहे हैं। ये अपने खिलाफ गवाही कौन देता है? कोई नहीं देते, लेकिन आखिरत का दुनिया में हर चीजें सच ही होगा। आज हम जो आंख में इतना टेक केयर करते हैं, आंख में हम रिफ्रेश ड्रॉप डालते हैं, सुरमा लगाता है, वही आंख उसी दिन सच्चाई का गवाही देगा। हमारा एक एक ऑर्गन सच्चाई बोलेगा, हम खुद गवाही देंगे जो काम हम करे हैं। तो ये आयत से हमें ये सबक लेने का है कि अपने खिलाफ गवाही देने वाला हम ना बने। उसी तरह अमल का, जो अल्लाह हमें अच्छा अमल करने का तौफीक अता करे। ये गवाही उनसे इसीलिए ली जाएगी कि ये साबित हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला ना था, जबकि उनके बाशिंदे हकीकत से बेखबर हो। ये लोग हकीकत से तो बेखबर नहीं थे, रसूल आए थे, तमाम हकीकत बताया, कुरान नाजिल हुआ, कुरान में एक एक हकीकत दुनिया का, आखिरत का, कब्र का, हर चीज से बताया गया है, तो बेखबर नहीं है। हर शख्स का दर्जा उसके काम के लिहाज से है, और तुम्हारा रब लोगों के कामों में से बेखबर नहीं है। तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबानी उसका तरीका है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है। मेहरबानी उसका तरीका। क्या हम महसूस करते हैं अल्लाह का मेहरबानी? हमें भी एक के बाद एक नाफरमानी होते ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह भी माफ करते ही चले आ रहे हैं। अल्लाह मोहलत दे ही रहे हैं, मौका दे ही रहे हैं सुधारने का, इस्लाह करने का, पलट आने का, नेक काम करने का। तो मेहरबानी हमें भी महसूस होना चाहिए। तुमसे जिस चीज का वादा किया जा रहा है, वो यकीनन आने वाली है। कौन सा चीज का वादा? ज़ालिकल यौमुल हक, ये दिन बरहक, क़यामत के दिन, क़यामत का दिन का वादा है। उस दिन हिसाब किताब होगा, जिसने जो काम किया उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो क़यामत का दिन का वादा है। और तुम अल्लाह को मजबूर कर देने की ताकत नहीं रखते। ये नबी कह दो कि लोगों, तुम अपनी जगह अमल करते रहो और मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूँ। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अंजाम किसके हक में बेहतर होता है। बहरहाल ये हकीकत है कि जालिम को भी भला नहीं पा सकते। यहाँ जो है, तुम अपना जगह अमल करो, मैं अपना जगह अमल, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकार करने वालों क्या इनकार करते चले, इसका इजाजत दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक सख्त तंबी है, एक वार्निंग है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना, कोई जगह जाने में मना कर रहे लेकिन बच्चा जिद करते हैं, तो हम गुस्सा से क्या कहते हैं? ठीक है, जाना चाहते हो, जाओ जाओ, ठीक है जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इजाजत नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम गुस्सा में है, हम तुम वार्निंग दे रहे हैं कि वहां जाओगे तो हम भी नाराज होंगे, और वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल है, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है। तो ये भी, यहाँ भी कुफर करने का इजाजत नहीं दिया गया, बल्कि तंबीह किया गया। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है, और अपने ख्याल से कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है, वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो उनके शरीकों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। यानी उन लोगों ने ठहराए हुए शरीक, यानी उन्होंने खुद गढ़ लिया था कि खेती का पैदावार में से या जानवरों में से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए, कुछ देवताओं के लिए वो लोग फिक्स करके रख देते थे, यानी शिक। तो देवताओं के हिस्से में अगर कुछ पैदावार कम होता तो अल्लाह का हिस्से से निकालकर उसमें शामिल कर देते थे ना, तो उसी का ही जिक्र है। तो यहाँ हमें देखना है, इसी तरह हम तो नहीं करते, जो अल्लाह का हिस्सा है वो हम दूसरे जगह तो नहीं दे देते। समझो कि अजान हो रहे हैं, कोई फोन आया, या हम फोन में बात कर रहे हैं, अजान शुरू हुआ, अजान हमें सुनना चाहिए, हमें उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन हम बात कंटिन्यू करते रहते हैं। इसी तरह होता है ना। तो हमें देखना है जहां जहां अल्लाह का हक है,
या अल्लाह का हिस्सा है, हक है, वो चीज, वो हक हम दूसरे जगह तो नहीं दे रहे, हमें अलर्ट होने का है। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है ताकि उनको हलाकत में डाले और उन पर उनके दीन को मुश्तबा बना दे। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा ना करते, तो इन्हें छोड़ दो कि छूट करने की काम में लगे रहे। ये भी बहुत डरने वाला आयत है कि औलाद को कत्ल करना खुशनुमा। कैसे खुशनुमा बनते हैं कि गलत इल्म नहीं है ना, नादानी, इल्म नहीं है कि समझते हैं कि इसमें नेकी है ना। इवन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा अब्दुल्ला, उन्हें भी इसी तरह, क्योंकि तब जमाने जहालियत चल रहे थे, इल्म नहीं था, सच्चाई नहीं जानते थे, तो औलाद को कत्ल करना नेकी समझ के, जैसे बलि चढ़ाता है ना, तो इसी तरह समझते हैं कि इसी में नेकी है, इसी में अच्छा है, फैमिली में तरक्की होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, तो इसे अच्छा समझ के तो ये काम को खुशनुमा बना देते हैं। फिर हलाकत में डाले। हलाकत में कैसे डाले? अगर इसी तरह अमल करोगे तो हलाकत में ही डाला जाओगे ना। एक तो इसी तरह औलाद को कत्ल करोगे तो क्या होगा? नस्ल खत्म हो जाएगा। बेटी को जिंदा काट देते थे ना, तो नस्ल खत्म हो जाएगा। फिर औलाद भी तो एक तरह का अर्निंग, कमाई है, सदका जारिया है, बेटी जन्नत के दरवाजा खोलने वाली है। अगर ये कत्ल कर दिया जाए, जिंदा दफनाया जाए, तो कौन जन्नत का दरवाजा खुलवाएगी? कौन हमारे लिए सदका जारिया बनकर रह जाएंगे हमारा जाने के बाद? तो ये पूरा हलाकत हुआ अगर औलाद को कत्ल किया। और दीन को मुश्तबा बना दे। कैसे? अगर इसी तरह दीन में इसी तरह अमल चलते रहे तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, डाउटफुल हो जाएगा ना कि अरे ये कैसा दीन है, औलाद को कत्ल किया जा रहे हैं। और फिर एक दूसरे में डर आ जाएंगे। बाप अगर औलाद को, तो एक दूसरे में जो मोहब्बत या वो भी खत्म हो जाएगा, शौक हो जाएगा। तो इसी तरह ये हलाकत में पड़ जाएंगे। आयत नंबर 138 कहते हैं, ये जानवर और ये खेत महफूज है, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें। हालांकि ये पाबंदी उनकी खुद की लगाई हुई है। फिर कुछ जानवर है जिन पर सवारी और बोझ ढोने का काम हराम कर दिया गया है, और कुछ जानवर है जिन पर ये अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ इन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है। जल्दी ही अल्लाह ने इनके झूठ गढ़ने का बदला देगा। और कहते हैं कि जो कुछ इन जानवरों के पेट में है, यह हमारे मर्दों के लिए खास है और हमारी औरतों पर हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों उसके खाने में शरीक हो सकते हैं। ये बातें जो इन्होंने कर ली हैं, इनका बदला अल्लाह इन्हें देकर रहेगा, लेकिन वो हिकमत वाला है और सब बातों को उसे खबर है। ये जो दो आयत इसी में किया है, इसी में कोई हकीकत नहीं है। जो अपना मनगढ़ंत जो रीति रिवाज बना लिया था अपना ख्वाहिशात के मुताबिक, उसी का बयान है जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। आयत नंबर 140 लेकिन घाटे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपने औलाद को जिहालत और नादानी की बुनियाद पर कत्ल किया और अल्लाह की दी हुई रोजी को अल्लाह पर झूठ घर के हराम ठहरा लिया, लेकिन उन्हें भटक गए। हरगिज़ ये सीधा रास्ता पाने वालों में से नहीं था। तो ये जो औलाद को कत्ल करना या इसी तरह दूसरे के लिए चीजें को फिक्स करके डिसाइड करके रख देना है, ये किस लिए है? जहालत और नादानी। जहालत यानी इल्म नहीं है, नादानी में पड़े हुए हैं, तो इसी के वजह से कर रहे हैं। तो अल्लाह ने जो कुरान नाजिल की सबसे पहला वर्ड किया था इकरा, पढ़ो, इल्म हासिल करो। इल्म में यहाँ पे अल्लाह ने जो तुम नहीं जानते वो अल्लाह ने इसमें सिखा दिया। तो सबसे पहले इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करोगे तो तमाम जो बुरा काम उससे तुम दूर आ जाओगे। तो हम ये जो सूरा में, मक्की सूरा में, या पूरा चीज हम समराइज करें तो हम क्या समझेंगे कि सबसे पहले हमारा अकीदा को दुरुस्त करना है। अकीदा यानी अकीदा तौहीद। अगर हम तौहीद को समझ ले, तौहीद पर जम जाए, तो ये सारे जो गलत काम करना, गलत रवैया, ये भी अपना हट जाएगा। जब हम जान जाएंगे तौहीद यानी अल्लाह का जात में कोई शरीक नहीं है,
تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود نہیں ٹھہرائیں گے، نہ ہی تو کوئی پیر، مزار، درویش یا فقیر کو۔ جب ہم جان جائیں گے کہ اللہ کا صفت میں کوئی شریک نہیں ہے تو ہم کوئی مزار میں جا کے یا کسی کو نہیں کہیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کر دیجیے۔ جب ہم جان جائیں گے کہ اللہ کا حقوق میں کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ ہم کسی کا عبادت نہ کریں گے، اپنا کھیتی کا پیداوار یا اپنا جانور اور کسی کے لیے فکس مقرر نہیں کریں گے۔ جب ہم جان جائیں گے کہ اللہ کا اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ بادشاہی اللہ کا ہے، یہاں اللہ کا قانون چلے گا، تو ہم اللہ کا حلال کیا ہوا چیزوں کو ہم حرام نہیں سمجھیں گے، اللہ کا احکام کے مطابق ہی ہم چلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ کو کلیئر کرنا ہے، سمجھنے کا ہے۔ اللہ ہمیں اسی کا توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں سننے میں کچھ بھی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کا توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔